So what you are given, parallel courses are given. What are parallel courses? That you can there are some prerequisite for each course. You have to complete all the prerequisite before going to a particular course, and you are also given a time value for each course. So two conditions that you can take any course at a particular moment, and the second condition is that you can only take a course only if the prerequisite are completed. So like the edges graph format would be given for representing prerequisite and courses, but these are the two conditions I'm talking about. Anytime you can take any number of courses at the same time, you can take. In the end, you have to return the minimum number of month needed to complete all courses. Now, as I said, that time is given, like how many months to complete this course is given. So in the first example, what do you think, how many time is required to complete all the courses? If you just add up 2 plus 3 plus 5, that is not the answer. What you have to do, basically, because of the first condition that you can take, second condition because you can take any number of courses, what we do, we see what all the courses I can take at a particular moment. Like as the first condition mentioned, uh, all the prerequisites are met. So 1 and 2, they do not have prerequisites, so yeah, they are met. And so you can go about 1 and 2. You start, okay, this is the starting point. You start, it takes you 1 month. Okay, you are still processing. 2 months, you completed the second course. Okay, because the duration required is 2 months, so now you have 2 months have been passed, you have completed second month, second course, and one is still running. It takes 1 more month. So after 3 months have been passed, one after 1 month, 3 months are now passed, and you have completed one as well as two. All the prerequisites are met for five, for three. Okay, whose duration is 5. So you can go about it and you can jump to that and you can take that course. Why? All the prerequisite are met. Yeah. So you go, you take. So 3 is the current time. Like 3 months have been passed, so you have been completed 1 and 2. Now you're starting the third course at when 3 months are passed. It takes to complete that. So 3 plus 5 is equal to 8. That's what I'm trying to say why the answer is 8. In this also you can say, first you will see, okay, 1 2 3 I can go about, and you go about, and after 1 month one is completed, after 2 months 3 2 is completed, after 3 month 3 is completed, but yeah, 2 and also 1 and 1 was also previously completed, so these three are already completed. So why it was required, basically 3 was required to complete 4. Now you can go about 4. Okay, okay, what do you think that, okay, but one was completed and 2 months have been passed and I have not done something. You cannot do something because five requires a four as well. Four is not completed yet, so you're waiting for four to be completed, then you can go to five only. So now four is waiting for three to be completed, so after 3 months three is completed, then you go for about four, then you add 3 plus 4 equal to 7. Now 4 is also completed, now you can start 5, because obviously 1 and 2, these two prerequisites were previously met very long ago. Now 4 is also met and 3 was also met. So yeah, now I can go over to 3 plus 4, which is 7, plus 5 equal to 12. That's why answer is 12. Now how do you solve this? One approach which I thought about is kind of doing a level order on top of sort. What do you mean by level order? So in this scenario, example 2, 1, 2, 3 is your level 1 elements because they do not have any prerequisite. What is level 2 element? It's not, it's only 4 actually, because level 2 is something which I can complete yeah, just after level 1, because I cannot complete 5 yet. 5 requires 4 as well. So this kind of relation, so 1, 2, 3 is level 1, 4 is level 2, and 5 is level 3. So that I thought I implemented that, but that's not a correct approach. Yeah, obviously it's not correct. I can give you a counter example. So that's how you prove yourself ki, okay, I'm thinking this, but is it correct generally or not? So the counter example was ki, let's say one was actually waiting so much because 4 जो है वो 3 के बाद लगा हुआ है. अगर 1 के बाद 4 होता और 2 होता और 3 होता, सो दिस इज द नाउ न्यू ग्राफ. बेसिकली क्या करो, 1 की जगह 3 लिख दो, 3 की जगह 1 लिख दो हर जगह, ठीक है. हर जगह मतलब नोड 1 जो है इसको 3 बना दो, 3 इज डायरेक्टली गोइंग टू 5, 1 इज गोइंग टू 4 एंड देन गोइंग टू 5. और इसकी ड्यूरेशन भी चेंज करो, 1 की ड्यूरेशन 1 मंथ है ना यहाँ पे, तो 1 मंथ करो, यहाँ की 3 मंथ करो. तो अभी जो ग्राफ है मेरा, 1 which is having duration of 1 month goes to 4 which is having duration of 4 month goes to 5 which is having duration of 5 month. और नीचे से एक 2 हो रहा है, 2 डायरेक्टली 5 पे जा रहा है, 3 डायरेक्टली 5 पे जा रहा है, 3 मंथ का कोर्स है 3 वाला. तो अभी क्या करेंगे, हम लेवल 1 चल रहा है, ठीक है, लेवल 1 चल रहा है, 1 शुरू हुआ खत्म हो गया 1 महीने में, और लेवल 2 अभी चल रहा है, लेवल 3 अभी चल रहा है. तो जैसे ही खत्म हुआ लेवल 1, मैंने 4 भी स्टार्ट कर दिया. 4 कोर्स में कर सकता हूँ स्टार्ट. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि उसका एक ही प्रीरिक्विजिट है, 1, वो कि ऑलरेडी मेट है. बट इस केस में क्यों नहीं करा मैंने?
क्योंकि उसका प्रीरिक्विजिट 3 था और जो कि कंप्लीट होने में टाइम लगा। पर अभी 3 और 2 चल रहे हैं, लेवल 1 और तो बेसिकली आई एम सेइंग कि मैं सोच रहा था कि लेवल 1 पहले जब साथ में हो जाएगा, उसका एक मैक्सिमम देखूंगा कि दिस इज द टाइम टू कंप्लीट लेवल 1, एंड देन लेवल 2 देखूंगा, फिर लेवल 2 3 देखूंगा। दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई? द सिंपल आंसर इज लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ भी हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो में लेवल 1 का नोड चल रहा है, 2 वाला चल रहा है, 3 वाला चल रहा है, बट लेवल 2 का 4 वाला भी चल रहा है। तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन लेवल। या तो 4 को बोलो कि तुम लेवल 1 में हो, जो कि लेवल 1 में नहीं है, 1 के बाद आ रहा है। ये 1 2 3 में क्या खासियत है, इनका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। 4 में एक प्री रिक्विजिट है, तो इट इज लेवल 2। 5 में एक्चुअली 2 लेवल की प्री रिक्विजिट है, 1 4 एंड देन 5। सो इसलिए वो लेवल 3 में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज नहीं चली, फिर अब कैसे करें भाई? मेरे को लगा कि ओके ग्रीडी नहीं है तो शायद डीपी वैसे भी कुछ हो। एक्चुअली डीपी ही है, बट उसको डीपी की तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो हर नोड के लिए हम टाइमर काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब यूनिक सोचना पड़ेगा कि टाइमर सोचते हैं कि हर नोड पे आने का क्या टाइम है, जाने का क्या टाइम है, कितना टाइम उसको करने का है, वो तो गिवन है। बट ओके, मैं अगर इस नोड पे मैं इस टाइम पे आता हूँ, तो मेरे को पता है इस नोड से मैं बाहर कितने टाइम में निकलूंगा जिस नोड पे आया, प्लस उसका टाइम। ऑब्वियसली 5 पे मैं अगर 1 सेकंड में पहुंच गया, तो 1 + 5 = 6, 6 सेकंड में मैं 5 को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाऊंगा, और दैट इज माय आंसर कि 6 पे ऑलरेडी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक चीज ये हुई। तो यही देख रहे हैं। अब मैंने कैसे देखा कि 5 से मैं निकलूंगा कब? मैं निकलूंगा कब? मैं ये स्टोर करा सकता था कि मैं 5 पे कब पहुंचूंगा, इन टाइम या आउट टाइम। व्हाई आई डिड नॉट स्टोर इन टाइम? क्योंकि एट लास्ट हमें जो आंसर रिटर्न करना है वो है कि आउट टाइम सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इसलिए आउट टाइम के बेसिस में डील करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 1 पे 0 सेकंड पे आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ 1 कंप्लीट करने में मेरे को 1 मंथ में मेरा 1 कंप्लीट हो जाएगा। आई एम रियली श्योर अबाउट दैट। 2 मंथ में मेरा 2 हो जाएगा। तो मैं खत्म होने का बात कर रहा हूँ, आउट टाइम की बात कर रहा हूँ। एंड देन 3 मंथ में थर्ड कोर्स कंप्लीट हो गया। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने 1 खत्म करा, मतलब कैसे खत्म, मतलब कि कुछ नहीं है। देखो टॉपर सॉर्ट है, दैट इज वन थिंग व्हिच इज ऑब्वियसली देयर, कि है तो टॉपर सॉर्ट ही। पहले मैं सोच रहा था मल्टी लेवल टॉपर सॉर्ट है, लेवल वाइज लेवल। मल्टी लेवल भी नहीं है, सिंगल टॉपर सॉर्ट है। जैसे ही तुमने 1 पे गए, तुमने 1 को देखा, तुमने अगले नेबर को पुश करना चाहा कि 5 को देखते पुश कर देता हूँ, बट 5 ने बोला, 5 की डिग्री को माइनस माइनस करा, और हमने देखा कि अच्छा एक और डिग्री है इसकी, डिग्री 0 नहीं हुई बेसिकली। बट एक हमें ऑप्शन मिल गया, मतलब मैंने तभी 5 पे क्या स्टोर कर लिया, 6 स्टोर कर दिया टाइम 5 पे। उसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 के थ्रू 5 पे पहुंच जाता 1 मिनट बाद ही या 1 मंथ बाद ही, तो मैं 1 + 5 6 मंथ पे मैं 5 से निकल सकता था, 6 मेरा आंसर हो सकता था। बट जो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो देखेंगे आगे, क्योंकि अभी फिलहाल 5 की वैल्यू मतलब यहाँ पे 5 की जगह पे 6 स्टोर हो चुका है। अगर मान लो 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, तो उसका फोर्थ आंसर सही आंसर होता, राइट? बट अभी 2 भी है, तो जब भी 2 को कंप्लीट करा, 2 को कंप्लीट क्या मतलब है, मतलब वही कि 2 ऑलरेडी क्यू में पुश था, क्योंकि इनिशियली 1 2 3 क्यू में ऑलरेडी पुश है, ठीक है। तो नाउ 2 की बारी आई, 1 पहले निकल गया, पॉप हो गया, और 1 ने 5 को अपडेट करा दिया, तो 5 की वैल्यू को 6 करा दिया कि ओके 6 मिनट में मैं 1 और 5 दोनों कंप्लीट करके निकल सकता हूँ। 2 आया। फिर या सेकंड, क्योंकि नोड ऑलरेडी थी, 2 ने भी 5 पे गया, 5 की नोड को अपडेट कर दिया, और उसको 5 + 2 7 मैक्सिमम लेते जाना है हर बार। तो इस बार 7 हो गया मैक्सिमम वैल्यू की। अच्छा, अभी दिस करंट सिनेरियो कि 1 और 2 है और 5 है, इस सिनेरियो में मेरा 7 आंसर है, ठीक है, वो भी सही है। फिर मैंने 3 भी देखा, क्योंकि वो भी नोड में पड़ा हुआ था। अब 3 ने 5 पे कुछ नहीं करा, 3 गया 4 पे, तो वैसे 3 ने 5 पे भी करा, फिर 3 ने 4 पे भी करा, फिर 4 भी क्यू में हमने डाल दिया, 5 अभी तक क्यू में डाला नहीं है, 4 अभी इसलिए डाल दिया क्योंकि 4 की डिग्री 0 हो गई। फिर 4 को क्यू में डाल दिया, 4 की वैल्यू 7 थी, 7 कर दी थी। और अब इसके बाद यहाँ से शुरू करा, 5 को डाला, क्योंकि जब 4 को भी हमने सेकंड लेवल कंप्लीट, मतलब लेवल की क्या बात है, लेवल के हिसाब से वैसे सब पुश हो रहा है, बट ठीक है। उसमें हम बाइफरफिकेशन नहीं कर रहे कि अच्छा ये अभी लेवल कंप्लीट हुआ, अब दूसरा लेवल शुरू हुआ। 1 2 3 ऑलरेडी क्यू में पुश था, क्यू में से पॉप हो रहे हैं फटाफट फटाफट। और फिर 3 के बाद 4 पुश हुआ, 4 पहले भी पुश हो सकता था अगर 1 के बाद तुरंत होता तो। वो भी चीज़ है, बट हर चीज़ से हमें ये चीज़ है कि अपडेट क्या हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता था कि 1 होता, देन 2 होता, देन 3 होता, देन 4 होता। वही अभी भी हो रहा है, ठीक है। मतलब वही अभी भी हो रहा है, बट पॉइंट ये है कि पहले 1 1 ने पुश कर देता। करंटली इनिशियली नो हमारी क्यू जो थी 1 2 3 थी। जैसे ही मैं 1 को प्रोसेस करता, मैं 4 पुश कर देता, अगर 1 के पीछे 4 लगा होता तो। बट अभी क्या हुआ, 1 को प्रोसेस करा, कुछ नहीं जोड़ा, 2 को कुछ नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि 5 की डिग्री 0 नहीं हुई अभी। 3 करा, 3 के पीछे अभी 4 जोड़ा, बिकॉज़ 4 की डिग्री 0 हो गई, ठीक है। अभी तो ये चीज़, ये डिफरेंस है कि 3 के बाद वो 4 है, प्लेस 4 की वही है, बट वो 3 की वजह से आया, 1 की वजह से आया, वो चीज़ है। फिर 4 को हमने देखा, और जैसे ही 4 को देखा, तो 4 की टाइमर कितना था, 4 की टाइम की वैल्यू आउट टाइम ऑफ 4 = 7। क्योंकि वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो 3 के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ था। अभी उसकी वजह से हमने 5 कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द कोड, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक मैंने समझा दिया है, नॉट मेस्ड इट अप। तो इसमें यही है कि यू हैव टू जस्ट सी द आउट टाइम फॉर ईच नोड। नीचे जाओ भाई, इसको नीचे करो। सो सबसे पहले डिग्री बना ली, टाइमर, दिस इज द मेन पार्ट। टीएम लॉन्ग लॉन्ग मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि टाइमर बड़ा भी हो छोटा भी हो, ठीक है वैसे तो।
एंड जीरो से फिल कर दिया इनिशियली क्योंकि मैक्स लेते जाना है, ठीक है। और फिर सबसे पहले मैंने ग्राफ बना लिया, डिग्री बना ली, जिसकी डिग्री जीरो है उसको क्यू में डाला, दिस इज अवर, जिसके कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, फर्स्ट लेवल थिंग। एंड देन वी गो ऑन, एंड देन हम इसके नेक्स्ट नोड पे जाते हैं, देखते हैं कि उसकी डिग्री को माइनस माइनस करके, और जैसे माइनस माइनस करता हूँ तो मैं उसके टाइमर को भी अपडेट करता हूँ मैक्सिमम से, और अगर डिग्री जीरो हो जाती है तो हम उसको पुश भी कर देते हैं कि दिस इज द हॉल, एंड या दैट्स अबाउट इट। एंड लास्ट में मैंने मैक्स टाइमर रिटर्न करा दिया। तो मैं इन टाइमर ले सकते थे, बट इन टाइमर लोगे तो तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी नोड है जो सबसे लेट स्टार्ट हो रही है, जिसका इन टाइम सबसे ज़्यादा है, और उसमें उसकी वैल्यू। बट उसमें पॉइंट ये है कि हो सकता है नोड लेट स्टार्ट हो रही है बट उसका टाइमर कम हो, एक नोड है जो जल्दी स्टार्ट हो रही है बट उसके टाइमर ज़्यादा हो। तो इसलिए मैंने आउट टाइमर के बेसिस पे करा है, जो आंसर ये मेरे को मैक्सिमम देगा वही मेरा आंसर है। दैट इज अबाउट इट। ठीक है, ओके बाय।